اس وقت جوائن کیا ہے اس نامور شخصیت نے کہ اس وقت جس طرح سے جو پورا پیناما کا کیس ہے، آج جس جگہ پر موجود ہیں سابق پرائم منسٹر، آج جس جگہ پہ عمران خان موجود ہیں، آج جس جگہ پہ آپ اور ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اگر وہ شخصیت نہ ہوتی تو غالباً یہ دن آج کا خواہ وہ کسی کے لیے خوشی کا ہو خواہ کسی کے لیے غم کا ہو وہ ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب بخاری صاحب نے۔ سر، ویری وارم ویلکم ٹو the show and I really regret that you have to kept on waiting for this long. Thank you, son. Sir, my honor, my pleasure, sir. Doesn't matter. جی اچھا سر، اب میں عرض کروں کہ آپ سوال پوچھیں گے۔ سر میں بالکل سر، سوالات بہت زیادہ تھے لیکن میں ان کو سمرائز کروں گا کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی، ایک کنفیوژن یا پھیلایا گیا ہے یا پھیلایا جا رہا ہے کہ جی یہ نااہلی جو ہے وہ تا حیات کے لیے نہیں ہے۔ بطور وکیل ذرا کنفیوژن کلیئر کر دیں گے کہ سر ساری عمر کے لیے ہی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے مدعا؟ اچھا جی، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے میاں صاحب نے جو وین ڈالے ہیں اور جو رونا دھونا دیا ہے، میں پہلے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور ان کی آہوزاری اور ان کے جو درد ہے دل میں، وہ کہتے ہیں جی کہ میرا دامن صاف ہے۔ میاں صاحب آپ کا دامن صاف نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہولڈر آف پبلک آفس بن کے دولت کمائی ہے۔ ہم نے ریمنڈ بیکر کی کتاب کیپٹلزم ایکلس ہیل لگائی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا اس کتاب کا جو کہتی ہے $147 ملین آپ نے کک بیک لیے موٹر وے پہ۔ وہ کہتا ہے ریمنڈ بیکر آپ نے کک بیک لیے ویٹ میں، ویٹ پرچیز مہنگی خریدی۔ آپ کا دامن کس طرح صاف ہے؟ کس طرح صاف ہے؟ یہ کیپٹل ایف زی ڈی پہ تو ایک حصہ ہے، آپ پہ الزام، میں بتاتا ہوں آپ کے الزام کیا ہیں۔ جی، آپ کے بیٹوں کے پاس، بیٹی اور بیٹے کے پاس شیئرز اس وقت تھے جب وہ چھوٹے تھے۔ آپ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اس وقت خریدی جب وہ ننھے تھے۔ آپ کے بیٹا حسن نواز نے فلیگ شپ انویسٹمنٹ میں اربوں روپے کا پیسے لگائے جب اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آپ نے جھوٹ بولا اسمبلی میں بھی اور قوم کے سامنے کہ عزیزیہ جو بکی ہے اس سے میرے بیٹوں نے اپنا کاروبار کیا ہے اور فلیٹس لنڈن میں خریدے ہیں۔ آپ نے گلف سٹیل ملز کی قیمت جس پہ بکی ہے جو آپ کہتے تھے 33 ملین درہمز، وہ جھوٹ تھا۔ آپ نے فرمایا قوم کے سامنے کہ 63 ملین سعودی ریالز کی عزیزیہ بکی، وہ جھوٹ ہے۔ آپ کے ہل ملز اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایچ ایم ای، اس کو پیسے اس کو بیچ دیں، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کی اولاد کے پاس جو رقم ہے، آپ کو جو ریمیٹنس ہو رہی ہے، وہ سب منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے۔ اور اگر آپ کا دامن اس سے صاف ہے، آپ دھیان کر لیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ریفرنسز آئیں گی، آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اور آج آپ فرماتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں رہوں گا، یہ آپ کی پھوپھی کا گھر ہے، یہ گھر ہے اسٹیٹ آف پاکستان کا، وزیر اعظم پاکستان کا۔ آپ نااہل ہو چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے تحفظات ہیں آپ کے لوگ، اور یہ کڑچھے جو آپ نے ارد گرد کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے تحفظات ہیں اس فیصلے کے بارے میں، تو کیا آپ 1997 کی طرح سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے؟ کیا آپ کے گلو بھٹ آئیں گے سپریم کورٹ میں؟ وہ چودھری نثار صاحب ٹھیک فرما رہے تھے، جی، You have not seen the writing on the wall. میاں صاحب you are over and gone. جو شخص آپ کا نام لے کے آپ کی پارٹی کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑے گا، میں سیاستدان نہیں ہوں، میں اس آدمی کو کہنا چاہتا ہوں اکثر جو فصلی بٹیرے ہیں، اس جھنڈے کے نیچے آؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ بالکل۔ آج مجھے نعیم بخاری صاحب میں وکیل کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان کا لہجہ بھی نظر آ رہا ہے، اور بڑے ہی اچھے طریقے سے سر آپ نے میں خفا ہوں ان سے یار، آپ کو عزت راست نہیں آئی میاں صاحب، آپ کو اس ملک کا فائنانس منسٹر بنایا، آپ کو چیف منسٹر پنجاب کا بنایا، آپ نے جنیجو سے دغا کیا، یہ کہ آپ فوج کی گود میں پلے ہوئے ہیں، آج آپ کہتے ہیں کوئی فوجی جنرل مارشل لا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جنیجو کو بٹرے کیا،
आपने मुस्तफा जतोई को बिट्रे किया, आपने पहली हुकूमत पे लड़े आप गुलाम इसाक खान के साथ, आपको काकड़ साहब ने आके कहा, दूसरी हुकूमत में आपने फिर वही किया। आप तो सबसे बड़े दुश्मन आप अपने हैं। बिल्कुल। और आप इर्द गिर्द चमचे इकट्ठे करते हैं जो आपकी तारीफ करें और कहें मियां साहब लुटपात दिए, एक तरफ नेल्सन मंडेला है और दूसरी तरफ आप हैं, मियां साहब कुदरत ने आपसे को बहुत बड़ा काम लेना है, करेला काम लेना है आपसे। आप लूट के खा गए इस मुल्क को, आपका खानदान लूट के खा गया, और फिर आप टेलीविजन पे आके रोना धोना कहते हैं, और फिर आप कहते हैं मैं डराता हूं, मैं गुल्लू बाट भेज दूंगा। ये खून जो मॉडल टाउन में लड़कियों का, औरतों का हो रहा है, वो मियां साहब आपके गले पे है। मैं आपको बता दूं, आप जितने मर्जी रोना धो लें, जितना मर्जी रो लें, जिस जगह जाएंगे, इस दुनिया के जिस मुल्क में जाएंगे, जहां भी पाकिस्तानी होगा वो कहेगा गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। बुखारी साहब, आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। सर आपने एक जुमला कहा था, मुझे याद है, जब आखिरी समाअत हो रही थी जेआईटी रिपोर्ट के बाद, और जजेस ने विंडिकेट किया आपके पॉइंट को। आपने कहा था कि ये कह देंगे कि अब्बा जी ने सब कुछ लिया सी ते सानू ते पता नहीं, अब्बा जी रहे नहीं, तो मुद्दा ही हल खत्म हो गया था। ये एक ऐसी प्ली थी, आपने गालिबन बिल्कुल आखिरी वो रखा हुआ था पत्ता, और आखिर में बताने के लिए। आपको लगता है अगर सर ये कह देते कि अब्बा जी ने लिया था तो फिर मामला खत्म था? अब्बा जी ने लिया था, मैंने डिफेंस ये दिया था, अगर मैं इनका वकील होता, ये तो बड़े खुश थे कि मैं वकील इमरान खान साहब का बन गया। हाँ। ये बड़े खुश थे, इनको कहा गया जी कि नहीं मजाक करता है। इनको ये नहीं पता था मैं 18-18 घंटे काम भी करता हूँ और मुझे पता है केस क्या करना है। इनका बड़ा सिंपल डिफेंस था, आधा लिया इनका डिफेंस। देखिए रहमान मलिक की रिपोर्ट में है कि इनके वालिद साहब का $30 मिलियन का पोर्टफोलियो था जो स्विट्जरलैंड में एक शख्स हैंडल करता था। ऑल ही हैड टू से वाज, ये मेरे वालिद साहब ने खरीदी, नेल्सन और नीलसन उनकी है, उनने पैसे दिए, मैं छोटा था, मुझसे वो पूछते नहीं थे, उनने ले लिए। फिर जब ये आ गए उनने कहा ओए बच्चों तुम्हारा नहीं है, ये हुसैन नवाज का है। हम क्या करते हैं? दिस वॉज हिज डिफेंस। यू गो एंड गेट ए स्टूपिड कतरी, चूंकि वो बंदा आपका सैफुर रहमान, वो जब उस पर नैब का केस हुआ ना, तो मैं उस जमाने में प्रोसिक्यूटर नैब था, वो जब भी अदालत में आता था उसकी आंखों में आंसू होते थे। अच्छी होता ना हंसदी डैन पाया ऐसे, रोंदी डैन थे हंसदी। देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, खुदा की कसम मैं तो बिजनेसमैन हूं। मियां साहब, यू आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर सेल्फ। आज आप कहते हैं कि मुझे मुल्क से धकेला गया, मुझे पता है और बेशुमार लोगों के पता है आपने कितने तरले डाले थे मुल्क से जाने के लिए। मुझे पता है आप कितने सूटकेस लेके गए थे, मुझे पता है आप कितने खुश थे वहां जाके, मुझे पता है आपने कितने तरले डाले थे कि आपको लंदन जाया जाए, मुझे पता है आप वापस क्यों उस मुल्क में आए थे, मुझे आपकी जर्नी वापस भी याद। जब एक दफा शहबाज शरीफ साहब आए थे, फिर आप आए थे, आपको एक शख्स लेने नहीं आया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। अब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये कौम इतनी बेवकूफ नहीं है, दे हैव सीन थ्रू यू। ये कि वो आपने नारा लगा दिया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ते ओ चो जाग पंजाबी जाग, तेरे पग नू पै, क्या कर रहे हैं आप? क्या किया है आपने अपनी जिंदगी में? बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब, वो एक मिसाल है पंजाबी की, अपनी शक्ल देखते हैं आप टेलीविजन पे, मिसाल है बुखारी साहब पंजाबी की कि अल्लाह मियां डंडा नहीं मारदा मत मारदा है, तो गालिबन शायद मत वजी होगी, तो इन्होंने फिर ऐसे इकदाम उठाए। सर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी रेफरेंस मत सुन लो बेटे, एक बात सुन लो मियां साहब, हम नहीं जानते आप कौन है, आपका कितना इल्म है, आपको एक कागज पूरा लिख के दिया जाए, आप में स्पैन ऑफ अटेंशन नहीं है कि आप पढ़ सकें, आपको रिस्पेक्ट और सैंक्टिटी ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल में फर्क पता नहीं है। आप ओबामा को इनवाइट करने जाते हैं और आप चिट लेके जाते हैं, आप चाइना जाते हैं और आपको पता नहीं है फ्रेंडशिप इज हायर देन द माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज एंड डीपर देन द सी। आप हैं कौन? ये कि कुदरत ने हमारा इम्तिहान लेना था। इस जिस कौम पे अजाब आता है कुदरत का, उस कौम पे आप जैसे हुक्मरान आ जाते हैं। और मैंने हमेशा कहा है प्लेटो रिपब्लिक से, जब भी आप बिजनेसमैन को अपना हुक्मरान बनाएंगे वो पैसे बनाएगा। आपने कोई बुरा नहीं किया, आपने वो किया है जो आपको आता है। आपको क्या आता है? पैसे बनाना।
to use the power of the state to make money. That you have done. आपकी किस्मत खराब इसलिए है कि आपका वहम था, आपको गरूर था कि इस दुनिया में आपका इम्तिहान नहीं होगा. आपका इम्तिहान हो चुका है. ये रेफरेंस आएगी और अगर मुझे मेरा चेयरमैन हुक्म करेगा मैं वो रेफरेंस आपकी औलाद के खिलाफ मुफ्त लड़ूंगा और मैं साबित करूंगा हर बात जो उस रेफरेंस में होगी, हर झूठ जो आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला है, हर झूठ जो आपने जेआईटी के सामने बोला है. आपने गुल्लू भट्ट भेजना है तो भेज दें. जितनी देर में मुकदमा लड़ रहा था आपकी हुकूमत जो कुछ कर सकी थी मेरे साथ उसने कर लिया है. जो कॉलें मुझे डराने के लिए आती थी फ्रॉम वो मैं सुन चुका हूं मियां साहब. मेरी बच्चों की किस्मत अपनी जगह. मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं 70वें साल में हूं. मैं तो आपको तब भी जानता हूं जब आप क्रिकेट खेला करते थे. आप रीजनेबल इंसान थे. आपके दिमाग में चढ़ गई है. अब आप थर्ड पर्सन में नवाज शरीफ, वो कहते हैं नवाज शरीफ. क्यों नहीं आप कहते मेरे बारे में बात करते हैं? हैव यू बिकम गॉड? आप कोई निट्शी के सुपरमैन बन गए हैं. हमें नहीं पता आप कौन है, आपको नहीं पता आप कौन है. किस दुनिया में फिरते हैं आप? आप ये चमचों की बातें सुन के हम आपके साथ हैं, हम आप पे एतमाद करते हैं. कौन सी आइडियोलॉजिकल पार्टी है पीएमएलएन? ये वो पार्टी है जो जुनेजो को डिजर्ट करके आई है. ये वो पार्टी है जिसमें फसली बटेरे बैठे हुए हैं. मेरे साहब गौर से सुन लें, मैं सियासतदान नहीं हूं, मैं इमरान खान का वर्कर हूं. बेशुमार ये पीएमएलएन के जो फसली बटेरे हैं ये पर फैला रहे हैं बनी गाला जाने के लिए. अच्छा, सुन लें और गौर से सुन लें. हमें आज नईम बुखारी साहब वकील, मैं दोबारा इस बात का ऐलान कर रहा हूं, आज जो नईम बुखारी आवाम को नजर आ रहे हैं वो शायद इससे पहले ना देखे हैं उन लोगों ने, लेकिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है. सर मैं एक कानूनी नुक्ता जरा रहनुमाई फरमाइएगा. मैं जला हुआ हूं, मैं जला हुआ अंदर से. यानी हमें खबरें फैलाई जा रही हैं. ओ जी जनाब साकिब निसार साहब मेरा जो चीफ जस्टिस है एक बेहतरीन जज है. ओ जी ये सेक्रेटरी लॉ रहे हुए हैं. मियां साहब वो सेक्रेटरी लॉ रहे होंगे कि आपकी हुकूमत में, वो इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है. ही इज ओनली आंसरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड टू द लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान एंड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. वो आपका बंदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. कोई बात नहीं सुनेगा. आप इन जजों के बारे में क्या कह सकते हैं? व्हाट हैव यू अगेंस्ट आसिफ सईद खोसा साहब? व्हाट हैव यू अगेंस्ट इजाज अफजल साहब? व्हाट हैव यू अगेंस्ट शेख अजमत साहब? What have you against Ijazul Hasan Sahab or Gulzar Sahab? Kya? You had the best judges in the history of this world. No doubt. 5-0 आपके खिलाफ फैसला आया है. कोई हया करें. हया अभी वक्त है आपका भागने का. मैं आपको मशवरा देता हूं जिस तरह आप पहले एक अग्रीमेंट के तहत भागे थे, चुप करके चले जाएं. मैं प्राइम मिनिस्टर में रहूंगा. क्यों रहेंगे आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में? कौन है आप वहां रहने वाले? किससे एग्रीमेंट करेंगे सर? प्राइम मिनिस्टर वेदर इट इज केट जी. किससे एग्रीमेंट करेंगे सर? अब ये नहीं, आप चुप करके भाग जाएं बाय अफगानिस्तान. और आपने जिस शख्स को नामजद किया है जी, मैं उधर ही आ रहा था. क्या ऑयल वाला शहबाज शरीफ तो परमानेंट होंगे ना सर, लेकिन फिलहाल शायद खाकाना वासी. केयर टेकर जी सर. खाकाना वासी. आपने ब्लू एयर से आपका ताल्लुक खत्म कर दिया. आप समझते हैं हमें नहीं पता कि आपने $200 मिलियन का ठेका दिया है फॉर एलएनजी टर्मिनल उस इदारे को, उस शख्स के दरमियान जिसके खिलाफ नैब रेफरेंस है. आप भूल गए? आप समझते हैं हमें नहीं पता? आप पता है उस ठेके में क्या लिखा हुआ है? आपने $3 लाख रोज के पेनल्टी है और आज आप कोशिश कर रहे हैं कि वो पेनल्टी माफ हो जाए. आप समझते हैं हम पागल हैं? इस कौम में कोई बात छुपी हुई रहती है. और फिर आप शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं यार आपको घर के बाहर कोई बंदा नहीं नजर नहीं आता. ये कोई प्राइवेट पार्टी है, लिमिटेड कंपनी है. कभी आप कहते हैं मेरी बेटी हो जाए, कभी मेरा बेटा हो जाए, मेरा भाई हो जाए. व्हाट इज रॉन्ग विद चौधरी निसार? अपराइट, स्ट्रेट और वो वाहिद शख्स है जिसने आपकी आंखों में आंखें डाल के कहा मियां साहब सी द राइटिंग ऑन द वॉल, ओनली ए मिरेकल कैन सेव यू. और आपने कहा ये बात मुझे अकेले में करनी थी. अगर आप में अभी भी कोई अपनी पार्टी को बचाने का कोई हल्का सा दिल है, मेक चौधरी निसार योर प्राइम मिनिस्टर. ही इज योर सेफेस्ट बेट.
शहबाज शरीफ आके क्या करेंगे? शहबाज शरीफ साहब अल तौफीक से नहीं निकल सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते, नॉट वन। मैं सर उसी की तरफ आ रहा था। साहब ये खुलेगा, हुदैबिया खुलेगा सर, हुदैबिया के रेफरेंस का तो डायरेक्टिव दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हुदैबिया में शहबाज शरीफ साहब वॉज ए गारंटर अपने बाप और अपने मरहूम भाई के साथ। शहबाज शरीफ साहब हुदैबिया के साथ इंटीमेटली कनेक्टेड हैं। इसहाक डार साहब जो सुल्तानी गवाह थे भाग गए हैं, अब वो अक्यूज्ड होंगे। जो उन्होंने बातें की हैं वो सब रिकॉर्ड पे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब को बनाना चाहते हैं, वो अब हेडशेट पा के आ रहे हैं और जो हर बात से दूर हैं। आपका ख्याल है कि गल्फ स्टील में जहां आप तारिक शफी को रिप्रेजेंट करते थे वो नहीं आएगी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के खिलाफ? आपका वहम है कि आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट खरीद लेंगे, ये दिल से निकाल लें। वो जमाने चले गए। मेरा लीडर कहता है नया पाकिस्तान शुरू हो गया। ये आपके पास जो जो आपने रकमें कमाई हुई हैं, ये एक एक पैसा अवाम पाकिस्तान का है, वो हम आपसे लेंगे। याद रखिए, मैंने कहता अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो आप एनाटोलिया जाएंगे। अगर आपकी किस्मत खराब होगी और आप धौंस में होंगे और जो वैन आप आज आपने डाले हैं, जो कौम को सुनाए हैं और जो आहुजारी की है, आप समझते हैं कि इससे आपकी बात बन जाएगी। और बाऊ नहीं बननी, इट्स ओवर। यू आर हिस्ट्री, योर फैमिली इज हिस्ट्री। भाई साहब, उनके बच्चे तो हसन हुसैन तो मासूम से थे, लेकिन उनके साथ भी खैर आपने अच्छी नहीं की। आपको लगता है 62-63 की तलवार तो अब सब पे चलेगी बुखारी साहब? अरे बाबा क्या किया इन्होंने? बेटी का फ्यूचर खराब किया, बच्चों का फ्यूचर खराब किया, अपने मरहूम बाप की जात को खराब किया, अपने आप को खराब किया। यानी किस हद तक झूठ बोलेंगे आप इस कौम के साथ? ये ठीक है, हम जो मेजॉरिटी हैं, हम पंजाबी हैं, हम लाई लग गए, लेकिन उसे याद है ना मियां साहब उस कहानी का? उन्हें कहा तेरा की नाम है? कहा भोली। उन्हें कहा दरा कहती एडी भी भोली नहीं। हम इतने भोले नहीं है जितने आप समझते हैं। इट्स ओवर, द गेम इज ओवर। बुखारी साहब, काश हमारे पास और भी वक्त होता। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि नईम बुखारी की जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा था जो उन्होंने ये अंजाम दिया? नहीं यार, नहीं 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 नहीं, मेरी जिंदगी के सबसे बड़ा कारनामा ये है कि मैंने 36 दफा रसूल अकरम की जियारत की, वहां जाके मदीना में 36 दफा मैं काबा के इर्द गिर्द घूमा और मैंने अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक कहा और लेट के कहा कि मैं कितना खुश नसीब हूं कि आपने मुझे बुलाया। एक दुआ नहीं मांगी अपने लिए। मैंने कहा इतने एहसान के गिनवाऊं न सकता, गिनवाऊं तो मैं कौन हूं? आपने मुझे सैयद पैदा किया, आपने मुझे मर्द पैदा किया, आपने मिडिल क्लास फैमिली में पैदा किया, आपने मुझे हुस्न दिया, मुझे वहम है कि बड़ा खुश शक्ल मर्द हूं, आपने मुझे तालीम दी, दुरुस्त है सर, आपने मुझे शोहरत दिलाई जी। मैं शुक्र के अलावा रब्बुल इज्जत का कुछ नहीं करता हूं। कभी कोई दुआ नहीं मांगी। मैं एहसानों का बदला नहीं चुका सकता हूं जो रब्बुल इज्जत ने मुझको दिया। कोई दुआ, बुखारी साहब आखिरी सवाल, कोई दुआ भी नहीं मांगता सर। आखिरी सवाल, ये नाअहली जो है सर, आवाम जानना चाह रही है। मैं आज कह रहा था दी एंड नहीं हैगा, फींड हैगा। ये पिक्चर सर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है सर। बस आखिरी सवाल, ये जो नाअहली है, आवाम में कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, क्या ये ताहयात है सर? यार मैं आपको वो फिल्म ग्लैडिएटर्स पता नहीं याद है? बिल्कुल याद है सर। वो इसका ओपनिंग सीन में रसल क्रो की, तो वो इसमें एक आदमी कहता है व्हेन डज ए नेशन नो दैट इट इज डिफीटेड? मियां साहब, व्हेन विल यू नो दैट द गेम इज ओवर? लक हैज डिजर्टेड यू। आपकी एक चाल चली हुई थी और जनरल जिलानी के दौर में, आप भोले से थे, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, आप चीफ मिनिस्टर बन गए। It has ended. There is a tide in the affairs of men. Your tide